me something about yourself, why you want to learn cybersecurity. I'm just giving you permission for mic. Yes, unmute the mic, Santanu. Santanu, अपना mic unmute करो and tell me yourself. Hello, I'm audible or not? मेरी आवाज आ रही है आपको? From here, you have to unmute the mic. If you are on laptop, just press Control D like that. This. Santanu, आवाज आ रही है? No, I'm not able to hear you because your mic is mute. You have to unmute your mic. See, here. Yes, now it's unmute. Hi Santanu, कहाँ से है आप? You are from Pune. Okay, first year, second year. Okay, you are in third year. Okay. Okay, everyone, now we have people. So just type in message कि where are you from? कहाँ से हो आप अभी right now क्या पढ़ रहे हो और what inspire you to become cyber security expert? Everyone can send message and at the last we will discuss all out here. Rohit from Odisha and Rohit, your qualification also like BTech, pursuing BCA or pursuing BSc Computer Science. Whatever you are pursuing, just type. I'm waiting and it's starting in 1 or 2 minutes. Okay, let's start then. People are joining. Student, see, this is a ethical hacking workshop and demo for advanced diploma in cybersecurity. Let me introduce about advanced diploma in cybersecurity of Cyber Yoga. So we have a more than 30 courses in cybersecurity. We are expert for only cybersecurity. We also have a diploma in cybersecurity program, advanced diploma in cybersecurity program. So let me introduce you about advanced diploma in cybersecurity program. See, advanced diploma cybersecurity program include ethical hacking, network security, web application penetration testing. अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, so this is diploma program for 15 months. So अभी right now we are offering free training of SIM training. साइबर सिक्योरिटी के जो सिम सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, एशिया में फिलहाल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। हर कंपनी के अंदर यूज किए जाते हैं, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडब्ल्यूएस हो, विप्रो हो, कोई भी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी, सभी के अंदर वो यूज किए जाते हैं। In advanced diploma cyber security we have a total 12 courses और वो 12 courses क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। And this course will be a totally live and online, जैसे अभी आप कर रहे हो 1 to 1 कर रहे हो, you can hear me and you can talk with me, you can ask doubt in class, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। So we will start from very basic like ethical hacking, जो कि आपका 3 महीने का कोर्स होता है जनरली। नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मास्टरिंग सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स विद PHP। इन all over world, we are the only one institute in the world who provide realistic programming for realistic hacking.
No one can able to teach you realistic tools for hacking. So that's why we have a PHP for development of social engineering tools like credential harvesting tools, email spoofer tools, location tracking tools, IP location tracking tools, different tools जो भी है वो हम खुद से स्क्रैच से आपको बनाने सिखाएंगे rather than कि हम आपको कोई फ्रेमवर्क कराएंगे. We will cover framework also, but we are not entirely depend on frameworks. So we will start from very basic. सारी चीजें basic से होगी. We have a core Python, we have a shell scripting, core Python for development of networking hacking tools, shell scripting for development of Kali Linux hacking tools. You can able to develop the tools and you can also create the cron jobs. बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. Then we have a basic Android development tools. For individual hacking, we have a certain courses. एक एक चीज को डिटेल में करने के लिए इन डेप्थ करने के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज रखे हुए हैं. ठीक है. That's why we have a 12 courses in our cyber security, like Java for Android penetration tester, advanced Kali Linux for penetration testing, Android malware exploit development, Android reverse engineering. All are different course. Basic Android development. So these are the course. And in diploma program, we have uh, 8 courses. तो एडवांस डिप्लोमा में हमारे 12 कोर्स है, इसमें हमारे 8 कोर्सेज है जो कि आप सामने देख रहे हो. बहुत सारी डिटेल है इन सब चीज़ों की. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. सो लाइक व्हाट इज एथिकल हैकिंग, स्कोप ऑफ एथिकल हैकिंग, क्या सारी चीज़ें ये होती है, वी विल डिस्कस वन बाय वन. So if we discuss what is hacking, or in cyber security, we have a two part to cover, like offensive cyber security, which one is known for attacking someone, and defensive cyber security to defend from someone. आप डिफेंड भी करोगे एंड यू विल डू सम ऑफेंसिव, जिसको हम हैकिंग बोलेंगे. एंड हैकिंग एक्चुअल में क्या होती है, इट्स लाइक अ गेनिंग ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू अ डेटा इन अ सिस्टम और अ कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हो बिना किसी परमिशन के, उसको हम बोलेंगे हैकिंग. इट्स लाइक आप अपने फ्रेंड के डेटा को हैक कर लेते हो, आप उसके डेटा को स्टील करके उसका मिस यूज कर रहे हो, इट्स हैकिंग. और आपके फ्रेंड को नहीं पता. आपके फ्रेंड ने आपको परमिशन नहीं दी कि आप उसके इंस्टाग्राम को लॉगिन करो. एनी हाउ यू लॉग इन द इंस्टाग्राम एंड यू आर सीइंग द चैट, यू आर स्क्रॉलिंग द चैट्स. इट्स नोन एज हैकिंग. आपने किसी के क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स लिए और किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर उसको बिना ओटीपी के यूज कर लिया. दैट में इंटरनेशनली आपको पता है पेमेंट नहीं चाहिए, है ना, कोई भी पेमेंट कंफर्मेशन नहीं चाहिए. तो डेफिनेटली वहां पर उसको हैकिंग हम बोलेंगे. तो हैकिंग इज वेरी सिंपल. If you are accessing someone's system or a data without his or her permission, that means you are unauthorized person for that. It known as hacking. What is ethical hacking? Ethical hacking क्या होती है then? Ethical hacking sometimes called as penetration testing. We also known as penetration testing. कि ethical hacking को penetration testing के नाम से हम जानते हैं. Is an act of intruding. We are just acting some like कि हम real hacking कर रहे हैं. But all ये हम सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टू फाइंड vulnerabilities एंड थ्रेट्स. एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग पेनिट्रेटिंग इनटू अ सिस्टम और अ नेटवर्क टू फाइंड आउट थ्रेट्स. थ्रेट्स फाइंड करने के लिए, vulnerabilities फाइंड करने के लिए इन दो सिस्टम विच आर malicious attacker में फाइंड एंड exploit cause losing of data and financial loss और अदर मेजर losses. तो एथिकल हैकिंग और हैकिंग के बीच का डिफरेंस अभी हम समझते हैं. उससे पहले हम समझेंगे कि हैकर कौन है, एथिकल हैकर कौन है. जो हैकिंग करता है उसको हम हैकर बोलते हैं, जो एथिकल हैकिंग करता है उसको एथिकल हैकर बोलते हैं. दैट्स वेरी सिंपल. हैकर ऑलवेज डू इलीगल थिंग्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, सर्वर हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग. किसी भी सिस्टम को एक्सेस करना बिना परमिशन के उसको हैकिंग बोलते हैं, और जो करता है उसको हैकर बोलते हैं. तो हैकर ऑलवेज डू इलीगल थिंग्स एंड हैकर्स आर द साइबर क्रिमिनल्स. Ethical hacker are the professional hacker. They always protect the system and work for people benefits. They always work for people benefits. वो हमेशा लोगों के benefit के लिए काम करते हैं. They try to penetrate the system to find out the vulnerabilities, weakness of any system. That's why they need to fix them.
देन वी हैव अ टाइप्स ऑफ हैकर। बेसिकली देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ हैकर जिसको हम जानते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से, व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से एंड ग्रे हैट हैकर्स के नाम से। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो हमेशा इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जो भी मैंने हैकर की बात कही, जैसे क्रेडिट कार्ड हैक कर लेना, किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करना, किसी भी सर्वर को हैक करना, किसी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके सिस्टम का एक्सेस करना। और जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो हमेशा लीगल काम करते हैं। दे आर द प्रोफेशनल हैकर, दैट मींस इथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। देन वी हैव अ ग्रे हैट हैकर जो कि हमारे कुछ अच्छे काम करते हैं, इट्स लाइक अ गुड वन और बैड वन। ये व्हाइट हैट हैकर ही होते हैं बट समटाइम दे डू सम इलीगल थिंग्स फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट और देयर पर्सनल वर्क। अपने कुछ पर्सनल काम के लिए, पर्सनल रीजन की वजह से वो हैकिंग परफॉर्म करते हैं इलीगल। दैट्स व्हाई इनको ग्रे हैट कहा जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनी डाउट? जय, रोहित, शांतनु, यहाँ आपको कोई डाउट है? एनीवन? जस्ट टाइप yes or no here. Simple. Okay. Now we have a salary to become the best and the decide your salary. See, अगर हम एवरेज सैलरी की बात करते हैं इंडिया में फॉर अ फ्रेशर, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 30 to 50,000 पर मंथ। हम इंडिया की बात कर रहे हैं एज अ फ्रेशर। बट अगर हम बात करते हैं इफ यू आर अ 2 or 3 year एक्सपीरियंस पर्सन, देन इट विल गो फ्रॉम लाइक 60 to 90, बिटवीन 16 to 90। तो ये एक बेसिक सैलरी मैंने आपको बताई है फ्रेशर की भी और एक्सपीरियंस की भी। बट स्टिल वी हैव अ कोटेशन टू ट्राई टू बिकम द बेस्ट एंड डिसाइड योर सैलरी। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आपकी स्किल्स कैसी है साइबर सिक्योरिटी में और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। नाउ कम टू पॉइंट। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज। We have also ethical hacking terminologies, that means कुछ ऐसे टर्म जिनके साथ आपका फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट वन इज vulnerability। रिसेंटली वी लर्न की एथिकल हैकिंग में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं टू फाइंड आउट द vulnerabilities। what are the vulnerabilities? Vulnerabilities is a security flaw, loophole और a bug जिसकी हेल्प से कोई भी अटैकर किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, किसी भी नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू फाइंड vulnerability एंड फिक्स दैट बिफोर समवन exploit it। अगर ये वनरेबिलिटी कोई हैकर फाइंड करता है, यानी कि एक ब्लैक हैट हैकर फाइंड करता है, तो इस वनरेबिलिटी के कारण उस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। और एक बार सिस्टम हैक हो गया, वी विल लॉस्ट एवरीथिंग। दैट्स व्हाई इन एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकर नीड टू फाइंड वनरेबिलिटी बिफोर एन अटैकर। देन वी ऑल्सो हैव अ हैक वैल्यू। हैक वैल्यू इज जनरली अ अमाउंट, एक वैल्यू जो कि हैकर एक्सप्रेस करते हैं कि यस दैट इज समथिंग वर्थ और डूइंग और इज इंटरेस्टिंग। लाइक व्हाई वी हैक समवन, आप किसी को क्यों ही हैक करोगे? सो हैकर शुड फील समथिंग वैल्यूएबल, कि एक वो वैल्यूएबल डेटा है, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका फायदा वो आगे चल के फ्यूचर में उठा सकता है, या जिस इंफॉर्मेशन को स्टील करके वो सेल कर सकता है। उसको हम जनरली हैक वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो हैक वैल्यू इज समथिंग जिसको हैकर फील करते हैं कि यस वी नीड टू हैक दिस, दैट्स व्हाई वी विल गेट दिस बेनिफिट और सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लाइक सम मनी, सम इंफॉर्मेशन, सम पर्सनल इंटरेस्ट, कुछ उनकी पर्सनल वैल्यू फीड हो रही है। इसलिए हैक वैल्यू भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कुछ कमांड्स होती है, जो कमांड एग्जीक्यूट होती है किसी भी सर्वर पे, किसी भी वेबसाइट पे। क्यों?
ताकि हम उसका फायदा उठा सके, किसका, सिक्योरिटी फ्लो का, वनरेबिलिटी का फायदा उठा सके, उस बग का फायदा उठा सके और उसको एक्सप्लॉइट कर सके। एक्सप्लॉइट मींस दैट मींस उसका फायदा उठा के उस वनरेबिलिटी के कारण सिस्टम को हैक कर सके। It can also refer to an actual act of trying to compromise the security of the system by taking advantage of its vulnerabilities. Adware. Adware is a piece of software that is designed to first display or pre-selected ads on a system. तो एडवेयर भी इसलिए ही यूज किया जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ। जब आप देखते हो, आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो क्रोम पे, कोई भी फायरफॉक्स पे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर आप कुछ फ्री में डाउनलोड करना चाह रहे हो, कोई एक एडल्ट कंटेंट आप विजिट कर रहे हो, या कोई क्रैकिंग सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, मूवीज से रिलेटेड आप कुछ पायरेटेड वेबसाइट्स पे जा रहे हो, देन यू सी यू आर रिडायरेक्टिंग टू अनदर एंड अनदर पेज बिकॉज ऑफ एडवेयर, और आपको वहां पे क्या दिखाई देते हैं, एड्स। तो एड्सवेयर इज अ काइंड ऑफ मालवेयर जो सामने वाले यूजर को जबरदस्ती फोर्सफुली एड दिखाते हैं। Then we also have a zero day threat की zero day threats क्या होते हैं? Zero day threats is a terminology used to refer to a threat that is undocumented, hence hidden from the antivirus scanner installed on a system. Zero day एक ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में किसी भी एंटीवायरस को नहीं पता। आपने कभी सोचा है कि एंटीवायरस किस तरीके से काम करते हैं? एंटीवायरस के कुछ डेटाबेसेस होते हैं, उन डेटाबेस के अंदर हर एक मालवेयर के सैंपल का फाइल सबमिशन होता है, और कोई भी जब एप्लीकेशन आती है, फाइल आती है, तो एंटीवायरस उस फाइल को स्कैन करता है और अपने डेटाबेस से मैच करता है। अगर कोई भी सबमिशन मैच करता है उस फाइल के साथ, कोई भी पैटर्न, मालिशियस पैटर्न मैच करता है, तो एंटीवायरस उस फाइल को डिटेक्ट कर लेता है। बट अगर कोई ऐसी फाइल जिसके बारे में एंटीवायरस को पहले पता ही नहीं था, अब वो फाइल को यूज किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो हम उसको जीरो डे थ्रेट के अंदर रखते हैं। Then we have a DOS attack. What is DOS? DOS is referred to as a denial of service attack. एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है जिसके अंदर कोई भी मालसियस हैकर किसी भी सर्वर को फ्लड करता है। दैट मींस वी आर सेंडिंग अ नंबर ऑफ पैकेट्स, like infinite packets like 10,000, 1 lakh, 2 lakh plus plus plus, एक पर्टिकुलर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एंड अल्टीमेटली सर्वर कैन नॉट हैंडल दैट पैकेट्स इन शॉर्ट इंटरवल टाइम। तो अल्टीमेटली इट कॉज like a hanging problem or server crash problem. It is done with the intention to overwhelm the server and make it crash and temporarily unavailable to other users. Is that clear? यहाँ तक सभी को clear है? Everyone? Tell me fast, then we will do another. Don't worry, I will unmute the mic at last. Huh? We will discuss everything, whatever you want. Yes, okay, let's go then. Now, firewall. Firewall is a very interesting topic. You see, firewall is like a software or a program that enable safe communication between the client and the server within a network by keeping away any outside unwanted intrusion. Intrusion that means like अगर कोई भी हैकर आपके नेटवर्क को इंट्रूड करता है या उसके नेटवर्क को हैक करके कनेक्ट कर लेता है, तो हम उसको इंट्रूजन बोल देते हैं कि लाइक दे आर इंट्रूजन। अगर आपके नेटवर्क में आपके फ्रेंड ने कनेक्ट कर लिया आपके वाईफाई से बिना बताए, बिना पासवर्ड मांगे, समहाउ ही इज इंट्रूडर, वो घुसपैठिया हो गया हमारे लिए। तो फायरवॉल इज अ प्रोग्राम जो कि हमारे कम्युनिकेशन को एक तरीके से मॉनिटर करता है बाय रूल्स, बाय सम काइंड ऑफ रूल्स, और उसको मॉनिटर करके ये इंश्योर करता है कि कोई भी थर्ड पार्टी हमारे नेटवर्क के अंदर ना घुस पाए,
कोई भी पर्सन हमारे नेटवर्क को इंट्रूड ना कर पाए और अनवांटेड ट्रैफिक भी हमारे सिस्टम पर ना आए। फायरवॉल इज लाइक अ बिग फायरवॉल या बिग वॉल जो आपने जनरली आप यूज करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर में रहने के लिए। इट्स लाइक दैट। देन वी ऑल्सो हैव सम टॉपिक इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जनरली क्या होता है? इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक मैसेज को एनकोड कर देते हैं। दैट मीन्स हम उस मैसेज को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि मैसेज हमारा अनरीडेबल होगा। एंड जब हम किसी मैसेज को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट होता है, तो उसको कहते हैं एनकोडिंग अ मैसेज। आप उस मैसेज को एनकोड कर रहे हो। उसका जनरली क्या होता है, जब आप किसी भी मैसेज को एनकोड कर देते हो तो वो अनरीडेबल हो जाता है किसी के लिए भी। बस उसको वही एक्सेस कर सकता है जिसने मैसेज को अनकोड किया था, या वो लोग जिनके पास उस मैसेज को डिकोड करने की पावर है, या दे नो द टेक्निक कि उस मैसेज को डिकोड कैसे करना है। दैट मीन्स सम ऑथोराइज पार्टीज। इट्स लाइक कि आप बायोमेट्रिक अपने घर में यूज करते हो। ओके, बायोमेट्रिक मशीन फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट है। और यू नो द पासवर्ड, यू हैव अ सम कार्ड, या आपके पास घर में की है, दो की आपके पास है, तो की उसके पास ही होगी जो ऑथोराइज पर्सन है, पड़ोसी के पास तो डेफिनेटली नहीं होगी। आपके घर के ही फैमिली मेंबर्स के पास होगी। ओनली दे कैन एक्सेस। सिमिलरली इंक्रिप्शन इज लाइक दैट। इंक्रिप्शन मैसेजेस फ्लोइंग थ्रू अ नेटवर्क इंश्योर कि जो हैकर है उस मैसेज को रीड ना कर पाए। इन एनी केस जो हैकर है वो अ, एक डेटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, बीच में इंटरसेप्ट कर लेते हैं किसी डेटा को। बट अगर वो मैसेज इंक्रिप्टेड मैसेज है तो हैकर भी उस मैसेज को कभी भी रीड नहीं कर पाएगा। तो जो इंक्रिप्टिंग मैसेज है वो इंश्योर करती है कि हैकर कैन नॉट रीड दैट डेटा विदाउट एनी परमिशन। एंड देन इफ दे ग्रैब द पैकेट्स एनी हाउ, उसके हाथ पैकेट्स लग जाते हैं, डेटा लग जाता है, बट डेटा विल बी इंक्रिप्टेड। तो अगर डेटा इंक्रिप्टेड है, अंटिल देन, जब तक डेटा इंक्रिप्टेड है, हैकर उस डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता और क्रैक नहीं कर सकता। देन वी हैव अटैक। अटैक यूजुअली अ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको हम रेफर करते हैं कि हमारे कोई सिस्टम पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, अनऑथोराइज हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम अटैक बोलते हैं। वी जनरली सी हर्ड द न्यूज़ कि हाँ ये हो गया है, इसको अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, किसी ने अटैक कर दिया था मेटा के सर्वर पे, किसी ने मेरे अकाउंट पे अटैक कर दिया, मुझ पे अटैक कर दिया, लाइक दैट। क्लियर है इतना? Backdoor is another often used ethical hacking terminology which refer to a hidden entry point into a software or a application that bypass a basic standard security measure like login with credential and authentications. तो बैकडोर की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं टू बाईपास एनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म और अ सिस्टम। इसको हम जनरली बैकडोर बोलते हैं। देन वी हैव अ क्रैकर ऑल्सो नोन एज द ब्लैक हैट हैकर, जो जनरली किसी भी एप्लीकेशन को क्रैक करते हैं, सॉफ्टवेयर को पायरेट करते हैं, क्रैक करते हैं। दे रिवर्स द सॉफ्टवेयर, दे रिवर्स द एप्लीकेशन, क्रिएट द मोड एप्लीकेशन और क्रैक एप्लीकेशन। Then we also have a brute force attack. Brute force attack referred to as some use of automation tools like Hydra, Burpsuit, जिसकी हेल्प से हम किसी भी लॉगिन बेस्ड क्रेडेंशियल्स निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पे काम करती है जहां पर रिकैप्चा जनरेट नहीं होता और जो नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट अलाउ करते हैं। नॉट ऑन मॉडर्न वेबसाइट, दे स्टिल वर्किंग। ये जो अटैक है स्टिल वर्क में है। बट राइट नाउ वी कैन नॉट यूज दिस अटैक ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी मॉडर्न वेबसाइट। वी कैन यूज दिस अटैक ऑन admin panel of most of the website, and some services like FTP, file transfer protocol, SSH, and the telnet, and SMTP, POP3, RDP.
इस तरीके के प्रोटोकॉल पर हम इसकी हेल्प से अटैक कर सकते हैं। इवन ब्रूट फोर्स अटैक को हम वाईफाई हैकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके फाइन। Now we will do a lab setup of our hacking. Before you start hacking, you need to set up the hacking machine. And to set up hacking machine, we will start from very old machine like Backtrack, जो कि आज के टाइम में काली लाइनेक्स के नाम से हम जानते हैं। तो once you just do kali.org, something is wrong with Kali, huh? What happened? Is someone hack Kali Linux? Okay, fine. See, we have a website kali.org. आपको इस वेबसाइट पे आना है एंड टू परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसका नाम है काली लाइनेक्स। काली लाइनेक्स एक डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन बेस लाइनेक्स बेस, ओके। डेबियन बेस में काली लाइनेक्स को हम यूज करेंगे जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स we can modify the some codes and we can check the source of Kali Linux. So just click on download and we have installer images, virtual machines like that. So just simply click virtual machine and we have a VMware file here. Click here and it will start downloading. Like ये 3 GB की हमारी कुछ फाइल है। Yes, we have a practicals. सी थ्योरी जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, बट आई नीड टू टीच यू हर सा थ्योरी। मेरे को थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। लाइक मेरे कोर्सेज में लाइक डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में हैव थ्योरी लाइक अराउंड अराउंड हार्डली 15 to 20%। बट वी ऑल्सो नीड टू कवर द थ्योरी। हमें एक थ्योरी कवर करना पड़ेगा ही। बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा ना। थ्योरी भी हमारा मैंडेटरी है। तो इट विल डाउनलोड इन अ फ्यू सेकंड। अंटिल देन हम बातें करते हैं और देखते हैं किसके क्या डाउट है। यहाँ तक मेरे शांतनु से बात हुई थी, ही इज फ्रॉम पुणे एंड मैं अभी आपको होस्ट कंट्रोल दे देता हूँ कुछ टाइम के लिए। नाउ यू अनम्यूट द माइक वन बाय वन फ्रॉम स्टार्ट। लाइक फ्रॉम हर्षा। या हाय हर्षा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। या ओके। हैदराबाद, ओके। बीटेक, ओके फाइन। And what inspires you to attend the workshop of cybersecurity, Harsa? Can you tell me about that? Okay, for you, passion. Okay, tell me something about your some powerful cybersecurity attacks going on right now. Do you know anyone, any attack you had? Okay, DDoS, okay. Some powerful like अभी recently क्या हुआ था, राहुल गांधी claim that government are spying on them or on opposition party. So do you believe that they are not ransomware? Ransomware is just such malware which encrypt your file with the help of RSA algorithm जो कि बनाई थी 3 लोगों ने मिलके, and their name is like Reverse Samir Alderman. So RSA is totally different. Our AIMS data has been affected by uh, this malware like ransomware, but uh, there is nothing such with राहुल गांधी। मतलब कोई रिलेशन नहीं है इसका उससे। But ransomware is the latest. You are right about that, but not in that case. Anything else, Harsa? Okay.
No problem. You know, don't need to be sorry. Yeah, hi Jay. Tell me something about yourself, Jay. Jay, I'm audible or not? आवाज आ रही है आपको जय? माइक अनम्यूट करना है आपको. Okay, fine. Yes, Pastor Rohit. Hi Rohit. Tell me something about yourself. Unmute the mic. आपको माइक अनम्यूट करना होगा, then you able to talk. We have only 2 minutes just. All right. You don't wanna talk. That's fine. Okay. Yes, yes. Continue. So, Kali Linux एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर we have a multiple tools of penetration testing like reverse engineering, information gathering, Android hacking, system hacking, client hacking, and web application penetration testing, VAPT tools, vulnerability assessment and penetration testing tools. We have a many tools available in Kali. That's why we are downloading Kali. And to install Kali, we need virtualization technology. And to use virtualization technology, we need the software or application program. And you can download anyone. Like you can download Oracle, VirtualBox. You can download from here, or you can download VMware Player. बट VMware प्लेयर अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. अगर आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यू विल सी सम रिडायरेक्शन टू access.broadcom.com. सो आप इसको मत करना डाउनलोड. आई विल गिव यू द पैकेज. मैं आपको पैकेज दे दूंगा थ्रू द ड्राइव. तो ये एक फाइल है जो कि 24.4 है. काली लाइनक्स. काली लाइनक्स क्या करती है? लेटेस्ट काली हर महीने कुछ महीने में निकालती है. एंड राइट नाउ हमारे पास 2024 का फोर्थ वर्जन है. तो कोई 2025 में कोई वर्जन नहीं आया कोई भी. तो अभी हम इसी को यूज करेंगे. तो जस्ट आपको डायरेक्टरी में जाना है. इस फाइल को कहीं पे भी आप रख सकते हो अपने किसी पे ड्राइव में. जैसे मैंने सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. और आपको यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक कर लेना है. राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है. मेरे पास 7 जिप है आर्काइव करने के लिए, अनआर्काइव करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए. आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो. आप विनरार डाउनलोड कर सकते हो. 7 जीबी इज टोटली फ्री, तो मेरे को 7 जीबी अच्छा लगता है. एंड इट्स फास्ट, better than WinRAR in some case. Why we need Kali Linux? As you see, जो हैकिंग है थ्रू द टर्मिनल बहुत ज़्यादा होती है. सो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर दो तरीके से ऑपरेट करते हैं. पहला है ग्राफिकल वर्जन, दूसरा है CLI. ग्राफिकली हम कहते हैं ग्राफिकल लाइक यूजर इंटरफेस, एंड CLI we known as command line interface. So just open your Kali folder and just click on that file which look like this. Let me zoom. Look like this. But this file is a VM file. You can see this file is a VM file. Just double click and it will open on by on. Kali Linux, enter. Default username is a Kali and the password is also Kali. ये इसके default credential है. Now see, ये हमारी Kali Linux है. बड़ा ही बेसिक कर गए हम इसका. तो हम बेसिक कमांड्स इसकी
अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल अभी जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जनरली सिंपल प्रेफरेंसेस में जाना है, चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको चेंज कर देना है अपने हिसाब से, जो भी आप कंफर्टेबल, ये देखो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो कमांड है हु एम आई, जो कमांड हमें हेल्प करेगी ये बताने में कि राइट नाउ हम कौन से यूजर है। तो वी आर द काली यूजर बाय डिफॉल्ट, हम काली में काम कर रहे हैं। एंड कंट्रोल ऑल्ट प्लस F5 अगर आप प्रेस करते हो तो आपको इस तरीके से काली दिखाई देगी, जो कि CLI वर्जन में है। तो अगर आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और एंटर करोगे तो अभी आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है माउस का, ओनली CLI कमांड लाइन इंटरफेस। बट इफ यू वांट टू बैक योर GUI वर्जन तो कंट्रोल ऑल्ट F7 प्रेस करना है। अगेन कंट्रोल ऑल्ट F5 फॉर टर्मिनल, यानी कि ओनली CLI वर्जन, एंड F7 फॉर ग्राफिकल वन प्लस टर्मिनल वन। तो टर्मिनल आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा लाइक दैट। और ये आपकी काली हो गई। तो सबसे पहली जो कमांड है, सॉरी दूसरी कमांड है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, विच विल हेल्प यू टू चेक योर डायरेक्टरी, आप किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हो। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग इन अ होम इज अ फोल्डर, देन उसके अंदर एक काली फोल्डर है। देन वी ऑल्सो हैव अ कमांड ls। ls कमांड है लिस्टिंग करने के लिए कि जो भी फाइल और फोल्डर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोस। विद द हेल्प ऑफ ls आप चेक कर सकते हो कोई भी फाइल और फोल्डर जो अवेलेबल है। बट इफ यू वांट टू चेंज योर डायरेक्टरी, लाइक यू वांट टू मूव ऑन डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, किसी भी डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, जस्ट टाइप cd फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड टाइप डाउनलोड्स। तो जैसे ही आप इसको करोगे, ls करोगे, फिर दोबारा से यहाँ पे कोई भी फाइल और फोल्डर नहीं दिखाई देगा। PWD करोगे तो आप चेक करोगे कि जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो चेंज हो जाएगी। पहले थी काली, नाउ वी आर वर्किंग अ होम, उसके अंदर एक फोल्डर है काली, देन उसके अंदर एक फोल्डर है डाउनलोड। माइक सभी कैन म्यूट है ना? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके। आई नो मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, बट किसी को कोई प्रॉब्लम रहे तो जस्ट लेट मी नो। कोई भी कमांड समझ में ना आए तो साथ के साथ पूछना, कुछ नया ही सीख के जाओगे। और अच्छा, क्लियर। देन वी हैव अ कमांड टू क्रिएट डायरेक्टरी, mkdir हैकर। जैसे मैंने ls किया तो मेरे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी दिखाई दे रही है, mk डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी इज अ कमांड टू क्रिएट डायरेक्टरी, फोल्डर बनाने के लिए, लाइक mkdir रोहित, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, सी लाइक दैट, mkdir शिवम, शांतनु एंड हर्षा। ये देखो, क्लियर इज अ कमांड टू क्लियर द स्क्रीन लाइक दैट। तो नाउ यू वांट टू चेंज डायरेक्टरी, तो सिंपल cd। अब मेरे को एक डायरेक्टरी अगर पीछे जाना है, अभी राइट नाउ मैं कहाँ पे हूँ, शिवम फोल्डर के अंदर, जो कि डाउनलोड के अंदर है और जो कि काली और होम के अंदर है, ये रहा। तो अगर मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो मुझे cd डॉट डॉट लिखना है। दो डायरेक्टरी पीछे जाना होता cd डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट लिखना होता। अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ। अब अगर मुझे, किसके अंदर मैंने वो फाइल बनाई थी पता नहीं, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो ls हाइफन स्टार, सॉरी ls स्पेस स्टार। डेस्कटॉप के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, डाउनलोड के अंदर सारे फोल्डर है। ये देखो, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप के अंदर जाऊं, cd डेस्कटॉप, यहाँ पर भी फोल्डर बना दूं, mkdir फोल्डर वन, फोल्डर टू, cd करके मैं बैक आया वापस से। अब ls अगर मैं स्टिक करूंगा तो क्या होगा, मेरे को पता लग जाएगा डेस्कटॉप के अंदर दो फोल्डर है, डाउनलोड के अंदर इतने फोल्डर है, कितने, दो एंड फाइव।
बाकी के अंदर कोई नहीं है। एंड अगर आपको चेंज करनी है डायरेक्टली, आपको जाना है CD डाउनलोड्स, इस तरीके से शिवम फोल्डर के अंदर, तो आप ऐसे ही जा सकते हो। इसके अंदर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, कोई फोल्डर अवेलेबल नहीं है। CD डॉट डॉट करके एक डायरेक्टरी पीछे आए। अब मुझे ये फोल्डर डिलीट करना है, तो RMDIR हैकर, एक साथ ज्यादा करने हैं, सारे करने हैं। ये हो गए सारे, RM-RF रिमूव फोर्सफुली, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल। तो अब यहाँ पर कोई भी फाइल फोल्डर है नहीं। मैं CD करके वापस आया, मैंने यहाँ से भी सबको डिलीट कर दिया। तो एक ही फोल्डर बचेगा डेस्कटॉप के नाम का, क्योंकि डेस्कटॉप डिलीट होने के बाद दोबारा अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। एवरीवन क्लियर यहाँ तक? अब जो हमारी कमांड है वो बड़ी ही सिंपल है, नैनो कमांड, जिसकी हेल्प से हम कोई भी फाइल बना सकते हैं। मानो मेरे को एक फाइल बनानी है read.txt। तो जैसे मैंने लिखा, अवर सेकंड बैच स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड, नॉट सेकंड, फर्स्ट फैब, कंट्रोल एक्सप्रेस वाई read.txt। तो अब मैंने नैनो से कैसे बनाई है फाइल बनाया, अब दोबारा बताता हूँ आपको कैसे बनानी है फाइल। मानो आपने एक फाइल बनानी है shivam.txt, आपको डिसाइड करना होगा आप किस एक्सटेंशन में बना रहे हो। नैनो की हेल्प से आपने यहाँ पे डेटा फीड किया, लाइक दैट लाइक दैट। आप यहाँ पे देख रहे हो कंट्रोल, इसका मतलब होता है कंट्रोल, ये जो सिंबल है ना, ये अपर ग्रेटर देन, ये इसका मतलब होता है कंट्रोल। तो इसको सेव करने के लिए हमें कंट्रोल एक्स प्रेस करना है। तो ये पूछेगा हमसे, सेव करना चाहते हो? यस डेफिनेटली चाहते हैं, तो यस के लिए क्या प्रेस करना है? वाई। फिर पूछ रहा है फाइल नेम यही रखना है, अब आपको एंटर प्रेस कर देना है। इस तरीके से ये सेव हो जाएगा। क्लियर किया? अब ये फाइल बन चुकी है। इफ यू वांट टू रीड कि आपकी फाइल के अंदर क्या डेटा है विदाउट ओपनिंग इट, तो सिंपल यूज कैट read.txt, कैट shivam.txt। अगर आपको ब्लैंक फाइल बनानी होती तो आप ऐसे बना सकते थे। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी होती आप ऐसे डिलीट कर सकते थे, RM की हेल्प से। अगर आपको कोई फाइल रीनेम करनी होती तो आप ऐसा कर सकते थे। हो गई ना रीनेम? तो मूव कमांड होती है रीनेम करने के लिए, प्लस फाइल को मूव कराने के लिए। मानो मैंने यहाँ पे दो फोल्डर बनाए, एक mkdir कॉपी, एक mkdir मूव। मुझे ये वाली जो फाइल है hacker.txt मूव कॉपी करनी है, किसके अंदर? कॉपी फोल्डर में। तो मैंने cp कमांड यूज करी फॉर कॉपी द फाइल। फाइल ऑपरेशन समझ रहे हैं हम, cp स्पेस hacker.txt, किसमें? कॉपी फोल्डर में। ls किया मैंने, क्या यहाँ पे अवेलेबल है? वो फाइल अवेलेबल है। क्या कॉपी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। जाके चेक करना चाहते हो कर सकते हो। CD करके डॉट डॉट करके वापिस एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। मूव कमांड यूज करूंगा, hacker.txt जो फाइल है मेरी, इसको मूव कर दूंगा एक फोल्डर में। अब ls करूंगा मूव, यहाँ पे तो है ही नहीं वो फाइल, यहाँ पे आ चुकी है। अगेन यू वांट टू कंफर्म, वैसे यहीं से हो जाता है कंफर्म। लो आप यहाँ से कंफर्म कर लो, डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन क्लियर और नॉट? यस। बी एनर्जेटिक यार, मेरे को नींद आ जाएगी। संडे है आज, सॉरी नॉट संडे, संडे कल है। संडे आई विल बी बिजी, मैं कल बिजी रहूंगा। दैट्स वाई मैं संडे को ही कराता हूँ, जितने भी वर्कशॉप या साइबर सिक्योरिटी के डेमो सेशन होते हैं संडे को ही रखते हैं हम। क्योंकि मंडे से फ्राइडे
और सैटरडे बैक टू बैच हमारे क्लासेस होते हैं, बैच होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, दैट्स वाई। इसलिए, और कल मेरे को कुछ पर्सनल काम था बट मैंने ऑफ नहीं किया। पिछले संडे भी रखना था मुझे, पिछले संडे में इसलिए नहीं रख पाया स्टूडेंट, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सभी को मेल चली गई होगी जिसने भी सब्सक्राइब किया था हमें। सी, कॉपी कॉस्ट जीएसटी। अब हमें रिनेम करना आ गया, ऑपरेशन जो भी है, हमें फाइल को रीड करना आ गया। एंड वी ऑल्सो नो द डिलीट, कि डिलीट हम इस तरीके से कर सकते हैं फाइल को। नाउ वी हैव अ कमांड टू इंस्टॉल समथिंग और नॉट। किस तरीके से apt हाइफन गेट यूज किया जाएगा, इंस्टॉल। apt हाइफन गेट इंस्टॉल, जो भी इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख देना है और आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। आपको sudo यूज करना है बिकॉज वी आर नॉट अ रूट यूजर। इन फ्यूचर वी विल लर्न कि हाउ टू डू रूट। तो अभी टीम व्यूवर अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन डाउनलोड एनी टूल, अदर टूल हम कोई डाउनलोड कर सकते हैं या क्रोम से भी कर सकते हैं, यहाँ से फायरफॉक्स से। तो फिलहाल मानो मेरे को क्रोमियम करना है इंस्टॉल। क्रोमियम, क्रोमियम मेरे पास ऑलरेडी है पहले से ही। मेरे को चाहे टोर सर्विस इंस्टॉल करनी है, टोर सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे सब पैकेट अवेलेबल नहीं होते, तो हम apt get अपडेट कमांड चलाते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी काली की जितनी भी सोर्स फाइल है वो अपडेट हो जाए, ताकि हम फ्यूचर में अपनी काली को अपडेट करके कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके। इसलिए मैंने इसको एक बार अपडेट कर लिया है। apt हाइफन गेट का मतलब होता है अपडेट। आप सिंपल apt स्पेस अपडेट को भी यूज कर सकते हो। sudo हमने इसलिए यूज किया है, वी आर अ kali यूजर, वी आर नॉट रूट यूजर। इन फ्यूचर वी विल इंस्टॉल द रूट यूजर। या बता भी देता हूँ कैसे होना है रूट यूजर इंस्टॉल, अभी देख लो। sudo apt हाइफन गेट इंस्टॉल kali हाइफन root हाइफन login। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा रूट लॉगिन यूजर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज अ ऑफिशियल वे। एक और तरीका है बट मैं उसको नहीं बता रहा, यह तरीका बेस्ट है, वो ही बता रहा हूँ जो बेस्ट है। देन आप सिंपल एक कमांड आपको यहाँ पे डालनी है, sudo paswd। फिर आपको पासवर्ड डिसाइड करना है, एंटर करना है और अपनी काली को रिबूट कर देना है। नाउ वी आर अ रूट यूजर। बहुत ही सिंपल है। रूट, पासवर्ड जो डाला मैंने वो लॉगिन किया। नाउ आई एम रूट यूजर। इट्स वेरी सिंपल। Again, we need to change some preferences by changing the font size. And here we go. Do by your comfortable, as much you feel. Okay, here we go and done. ls। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एंड जस्ट फ्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही हम कुछ इंस्टॉल करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। sudo apt हाइफन गेट इंस्टॉल टीम व्यूअर। अब ट्राई करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा। काली लाइनक्स में पैकेट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अभी हमने सिर्फ एक तरीका सीखा जिसकी हेल्प से हम इंस्टॉल करना चाह रहे थे, जो नहीं हुआ। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि मैंने कहा था कि काली लाइनक्स हमारा डेबियन बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स उसके अंदर जो पैकेट मैनेजमेंट काम करता है, डीपीकेजी। डीपीकेजी दैट मीन्स डेबियन पैकेज मैनेजर, ये वाला डीपीकेजी। तो इसकी हेल्प से हम कोई फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वी नीड टू डाउनलोड लाइनक्स फाइल। हम विंडोज के अंदर यूज करते हैं डॉट exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ये लाइनक्स है, और कौन सा लाइनक्स है, डेबियन बेस। तो हम डॉट डेबियन फाइल को ढूंढेंगे। और एक और बात, जितने भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जब आपका फ्यूचर में जब आप कोर्स करोगे फ्यूचर में आपका होगा एडवांस खाली लाइनक्स। तो लाइनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रो है, जिसमें कुछ में डेबियन बेस है, कुछ में आरपीएम बेस है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमें टीम व्यूवर डाउनलोड करना है, फ्री पे क्लिक करेंगे। एंड ये वाला है फ्री, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे।
ऑप्शन दिखाई देगा। तो लाइनेक्स में आपको देखो फाइल दिखाई देगी कि आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डेबियन बेस है, तो हम ये वाला डाउनलोड कर लेंगे। हमारा रेड हैट तो है ही नहीं ना, आरपीएम पैकेज थोड़ी है हमारा। फाइन, हमारी डाउनलोड हो चुकी है फाइल। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, एलएस किया, किसके अंदर होगा फाइल, डाउनलोड्स के अंदर। क्लियर किया, एलएस किया, dpkg, ये वाली कमांड, -i एंड टीम, फिर मैंने एस्टिक लिख दिया। इसका मतलब पता है क्या है एस्टिक का मतलब, जो भी फाइल है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि एक ही फाइल थी। अब इतना लंबा लिख के क्या करूंगा मैं। अब मैंने क्या किया, जब टीम व्यूवर को इंस्टॉल किया, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एरर मेरे को देखने को मिल रहा है। आप अगर नोटिस करो, एक एरर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हमारी लाइनेक्स है वो स्टेबल है नहीं। तो लाइनेक्स में चैलेंजेस हमें फेस करने को देखने को मिलते हैं, कि बहुत सारे चैलेंजेस, कभी कुछ और एरर आएगा, कभी कुछ एरर आएगा। तो वी नीड टू वर्क एज हार्डर एज कैन, हमें काली पे अच्छे से काम करना होगा। तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी, इसको इंस्टॉल करने में कोई पॉलिसी किट है जो कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, पहले तो मैं करूंगा अपनी काली को अपडेट, apt-get अपडेट। मैं दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट हो गया, इंस्टॉल पॉलिसी किट 1। तो ये जो है अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पैकेज का जो नेम है वो चेंज करके ये रख दूंगा, जो कि मेरे को काली ने खुद से रिकमेंड किया है। तो अब एक और एरर आया है, देखो एरर पे एरर आ रहे हैं, यू नीड टू फिक्स दैट। और ये कितनी देर में फिक्स हो गया, नो वन नो दैट। ये डीपी की टीम व्यूवर, अब दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं ना, एरर आ गया था। देखो अभी भी एरर हमें देखने को मिल रहा है, कि अभी भी जो एरर है वो हमारा फिक्स नहीं हुआ। अब क्या, कौन सी कमांड चलाएगा, दोबारा एपीटी गेट अपडेट चलाएगा। हालांकि मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दिखा देता, बट मैं वो नहीं दिखाना चाह रहा आपको। मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी काली लाइनेक्स पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरा ट्राई करना है बस, कि हाँ, हमें कुछ भी करके एरर को रिजॉल्व करना है, जितने भी टाइम में होगा, और इंस्टॉल करना है। स्टिल अभी क्या आप देख रहे हो, अभी भी सेम एरर है, तो नाउ वी नीड टू अपग्रेड अवर काली। अब अगेन वी आर गेटिंग एरर। काली की खास बात ये है, जब हम काली पे काम करते हैं ना, तो जो एरर आते हैं ना, उन एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी आते हैं। नाउ वी विल अपग्रेड काली, है ना ये। तो आप एक एरर से निकलोगे, दूसरे पे जाओगे, बट अल्टीमेटली एरर क्या है, अब मोस्ट ऑफ द लाइक 70-80% एरर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। दैट्स वाई हमें जो हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, वो प्री रिकॉर्डिंग के अनुसार या उसके थ्रू नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपने पुराने टाइम में क्या किया, कब क्या किया, तो वो अब काम करेगा नहीं करेगा, डेफिनेटली नो गारंटी। अब ये जो है मेरी काली को अपग्रेड कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है आपको। और जरूरी नहीं है हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए प्रॉब्लम आएगी काली में।
आ जाती है एक दो सॉफ्टवेयर में इशू, नो इशू। अब जैसे मुझे खुद नहीं पता था टीम व्यूवर में कराऊंगा इंस्टॉल तो इसमें दिक्कत आएगी, पर अब मैं उसको इसलिए नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर मैं आपके सामने इस एरर को रिजॉल्व नहीं कर पाया तो मेरा पढ़ाने का फायदा ही क्या है आपको, व्हाट आई एम, कि मैं चलो दूसरे को इंस्टॉल करा के दिखा देता हूँ। वी नीड टू फिक्स दैट। एक किसी को छोड़ के करने का क्या फायदा। मैंने वो बताया नहीं ना हर्षा आपको, पैगासस नाम था उसका, इजरायली मालवेयर साइबर सिक्योरिटी वेपन, सर्च कर लेना। ओके, वी आर जस्ट डन in few couple of seconds, almost। अपग्रेड पता क्या करता है, हमारी काली के बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना और पैकेज होते हैं उनको डायरेक्टली वो अपग्रेड ही कर देता है। और अपग्रेड करने से बहुत सारे एरर प्रोड्यूस भी होते हैं, फिक्स भी होते हैं साथ के साथ। जैसे वो डुप्लीकेट फाइल वाली था इशू आया था, अभी ऊपर चला गया। बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से जा रही होगी, बट इट विल टेक टाइम। मैं आपको एक रोड मैप भी बताऊंगा अभी राइट नाउ कि like if you don't have a budget to start cyber security courses and you want to become on by own, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें सीखनी भी चाहिए, कंप्लीट रोड मैप टू बिकम साइबर सिक्योरिटी। We have a student from Pune also, like Santanu, and Hyderabad also, Mumbai also, Jaipur also। एंड इस साल तो उड़ीसा से स्टूडेंट नहीं आए हमारे पास, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, जनवरी से ही स्टार्ट हुए थे एडमिशन। वी विल गेट, बट उड़ीसा से भी हमारे पास अच्छे खासे आते हैं स्टूडेंट। वी ऑल्सो हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम कोलकाता, यानी कि वेस्ट बंगाल। एंड फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम लाइक कनाडा, ऑस्ट्रिया, एंड समटाइम, क्या नाम था उसका, ऑस्ट्रिया कनाडा एक और था, नॉट कतर, कतर नहीं, एक और है स्टूडेंट है मेरा वहाँ का, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। यस यस यस, +44 नंबर है उसका, यूके का है वो, यूनाइटेड किंगडम। ओके, ऑलमोस्ट डन।
इट टेकिंग सो लॉन्ग टुडे, इतना टाइम लेती नहीं है ये। आज ज़्यादा टाइम ले रही है। नेट का इशू नहीं है क्योंकि अपडेट तो सब कुछ हो गया, डाउनलोड सब हो गया। बस ये सेटअप कर रहा है, उसको इंस्टॉलिंग कर रहा है। यस, यस श्योर, यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। यू डोंट हैव। यस। हाँ बोलिए। यस, यस। You don't have a basic knowledge of some networking concept, some website concept, client and server, how they work, what is router, what is firewall, what is IDS, what is IPS, what is basically vulnerabilities and exploits, payloads, backdoor, cell codes, active directories and many things. बहुत सारे concept है basic जो कि आपको नहीं पता, that's why आपको वो tough लग रहे हैं। On what platform you are trying to solve CTF? Don't go for directly Hackbox or Vulnerable Hub. Start from very basic, like try hack me. Yes. एंड वायर सार की जो टूल ऑफ नेटवर्क पैकेट एनालिसिस, जनरली वो नेटवर्किंग का टूल है। बर्फ सूट इज अ टूल ऑफ लाइक काइंड ऑफ बॉथ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड टू फाइंड आउट लाइक कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस पे जा रहा है, टू टेस्टिंग द प्रॉक्सी एंड सम काइंड ऑफ प्लगइन्स दे हैव। तो बर्फ सूट एक तरीके से अच्छा टूल है, बट नॉट फॉर लाइक सीटीएफ के लिए ज़्यादा वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब सीटीएफ में भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। लाइक मशीन को प्योन करने के सीटीएफ कर रहे हो, वेब बेस्ड सीटीएफ कर रहे हो। अगर आपको वेब बेस्ड करने हैं तो पोर्ट फिगर से स्टार्ट करो, है ना। फिर एक हैकर वन वेबसाइट है, उसके खुद के ही वेब बेस्ड के है challenges, उनको solve करो। go for dbwa, go for bwap, and go for some test php vulnerableweb.com, then go for live website hunting. There are many more। और बताओ क्या डाउट है। हाँ डेफिनेटली वो डिफिकल्ट हो गए, क्योंकि आप पता नहीं किस तरीके से उन फंडामेंटल को सीख रहे हो। यू नो दैट कि आप उसमें क्या कर रहे हो। फंडामेंटल कोर अगर आपके स्ट्रांग हो गए, डेफिनेटली यू कैन डू इट। बट मेरे को जो लगता है फंडामेंटल कहीं ना कहीं वीक है, उसके कारण आप उसको नहीं कर पा रहे हो।
स्टिल इट गेटिंग एरर। इसका मतलब ये टाइम लगाएगा हमारा एरर सबसे ज्यादा आज। और कोई डाउट है आपको? एनीवन, कोई डाउट है? ओके, जस्ट अ मिनट। इसमें एक फाइल होती है, ईटीसी के अंदर होती है, ईटीसी के अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। एंड देन एपीटी, देन उसके अंदर एक फाइल है नैनो सोर्स डॉट लिस्ट करके। इसके अंदर ये डेबिन पैकेज है, इस पैकेज को मैं हटाऊंगा, कंट्रोल एक्स करके इसको सेव कर दूंगा। देन अगेन मैं इसको अपग्रेड करूंगा। इससे क्या होगा, हमारे काली के जो सोर्सेस है वो नए हमें मिलेंगे, ताकि हम उस चीज को इंस्टॉल करने की कोशिश करें जो हो नहीं रहा था। ये हो नहीं रहा, इसमें शायद काफी टाइम लगेगा। देयर में भी है चांस कि हमने जो काली की डिस्ट्रो डाउनलोड करी है इसमें ही एरर है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम बार बार एक एरर को फिक्स कर रहे हैं। एंड जब भी हम दोबारा से इस एरर को निकाल रहे हैं वापस से और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं पैकेज को, अल्टीमेटली इट गेटिंग सेम एरर अगेन एंड अगेन। तो ये एक तरीके से लूप में फंस गया, तो देर इज अ हाईली चांस कि हमारा जो पैकेट है वो अवेलेबल ना हो राइट ना हो अभी। तो जब इनका कोई दूसरा वर्जन आएगा तब वो जाके फिक्स हो जाएगा उनकी एपीआई में। क्रोम। अगेन हाँ, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है हमारी। ये जो है ना, ये ये फिक्स नहीं कर पा रहा है एरर को। अगेन वो इसको रिमूव करेगा, ठीक है, बट फिर भी ये देखो, उसने हर बार रिमूव किया है। देन अगेन फिर भी हम वापस ये कमांड चलाएंगे, अगेन हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, सेम हम डीपीकेजी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। डीपीकेजी हाइफन आई टीम व्यूवर। तो ये इसको इंस्टॉल ही नहीं कर रहा है। ये देखो अगेन, दैट्स वाई क्रोमियम तो इसने कर दिया होगा शायद से। क्रोमियम, क्रोमियम तो इसने कर दिया, ठीक है। ये देखो क्रोमियम हो गया विदाउट सैंडबॉक्स, वी आर रूट यूजर ना, दैट्स वाई। ये रहा। बट टीम व्यूवर का चल रहा है, तो टीम व्यूवर का यही है कि या तो फिर हमें सिंपल दोबारा से अपग्रेड चलाना पड़ेगा, या अपग्रेड की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रो, काले की डिस्ट्रो को अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो वो बार बार एक एपीआई ही एरर कर रही है। सो आई हैव टू स्किप दैट, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा फिर।
ये देखो बार बार वो उसी को कर रहा है। और अगर मैं एपीटी ऑटो रिमूव भी कमांड चलाऊं, लास्ट कमांड जो बचती है, तब डीपीकेजी ट्राई करने की कोशिश करूं, डीपीकेजी दिस कि ये इंस्टॉल होता है नहीं होता है। अगेन इट्स नॉट इंस्टॉलिंग। दैट्स वाई ये एक लूप में फंस गया है। या तो हमें डिस्ट्रो अलग चाहिए काली की, या हमें काली को दोबारा से अपग्रेड और अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ जी, और बताइए किसी को क्या डाउट है? हाँ, मेरे को आपको बताना था रोड मैप। यस स्टूडेंट, देखो अगर आपको एक बेसिक रोड मैप तैयार करना है तो डू सम नेटवर्किंग बेसिक फर्स्ट। बहुत ही बेसिक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सच एडवांस नहीं बता रहा जो आपको टफ लगेगे। वेब फंडामेंटल, मालवेयर, रिवर्स इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, लाइनेक्स फंडामेंटल, एंड देन सीडीएफ। तो ये ऐसा है। और एक अगर आपको जनरली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्स चाहिए, देन वी हैव अ प्रोग्राम जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। वी हैव एडवांस डिप्लोमा फॉर 15 मंथ एंड डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी फॉर 12 मंथ, जिसके अंदर आपके ये सारे कोर्सेज हैं। एंड फ्रॉम वेरी बेसिक वी विल स्टार्ट एवरीथिंग। और जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है गाइस, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप